Hey everyone, welcome back to my channel. This topic we are continuing with method overloading, and I had discussion about this last session. I have explained what is the method overloading and how you can execute the method overloading. Also, this is the example which I have written for you and compile this code. So now there is a few important topic about the method overloading which we are going to discuss it right now. So actually this is all are the interview questions, so they can might be asked in your interview, so be careful and listen carefully. Basically they can ask you why method overloading is not possible by changing the return type of method only. So it says if you are changing the return type of method, means if you are creating this static integer sum and integer a integer b is same. Also here just you are using the double sum but two variable integer a integer b, and only you are changing this return type, not parameter. Okay, so in that case method overloading is not possible. So why it is so? Okay, I'll give you this example only. Suppose I will remove. Okay, I will do the copy and paste, not remove. Here I have written double, this is the data type I have used, and else I have used the same. I mean integer. In the first method I am using the return type integer, and in the second method I am using the return type is double. But other than else, this is the data type, this is the data type are same. Okay, I'm trying to return the this integer value. So it's saying why it is not possible by changing the return type of method only रिटर्न टाइप चेंज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? लेकिन अगर आपने ये चेंज किया तो हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ आप रिटर्न टाइप चेंज कर रहे हो तो उस केस में पॉसिबल क्यों नहीं है? देखो आपने एरर देखा है यहाँ पे, ये एरर आ गया है. यहाँ पे आपने लिखा है डबल, ये सम बना है, डुप्लीकेट मेथड सम इंटीजर डुप्लीकेट मेथड दिखा रहा है एम्बिग्यूटी के कारण. सो लेट्स से एग्जांपल. सो बेसिकली इन जावा मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड only because of ambiguity, because whenever you will try to call the method, okay, whenever you will try to call the method, so the parameter you are passing that is integer. Okay, so this is the integer value only. So see, in this method I have passed two parameter here and two parameter this method. Okay, that's fine, but compiler will be confused here कि पहले उसको कौन सा मेथड कॉल करना है, ये वाला मेथड कॉल करना है, ये वाला मेथड. जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स दे रहे थे तो उसको समझ में आ रहा था कि जिसमें तीन वैल्यू पास कराई है वो मेथड कॉल करना है, जिसमें दो वैल्यू पास कराई है वो मेथड कॉल करना है. बट यहाँ पे आपने दोनों इंटीजर वैल्यू पास कराई, मेथड का नेम भी सेम है, तो उसको पहले किसको कॉल करा है? डुप्लीकेट यू कैन से. तो पहले कौन सा आएगा? तो वो जावा जो कंपाइलर है वो आपका ड्यू टू एम्बिग्यूटी ये पहचान नहीं पाता है कि आपको पहले कौन सा एग्जीक्यूट करना है. दिस इज ओनली द रीजन कि आपका ये मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ओनली नॉट पॉसिबल, बट चेंजिंग द रिटर्न टाइप प्लस पैरामीटर्स इट पॉसिबल. ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. वैसे तो इसमें एरर आ गया बिकॉज इक्लिप्स आईडी है, बट फिर भी अगर आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर देता है. और wait, this is the predefined output here, so I will remove this console window, clear screen. Okay, so you can see integer a integer b integer a integer b, so the value which you have written here. So if you will see, so this is the duplicate method it's showing. Okay, so this is the reason, because due to ambiguity this is not possible. Okay, okay, let's move the this is giving the example because I have passed the correct value 10 8 दोनों को उसने कॉल करा दिया है यहाँ पे. बट ये मेरा रिटर्न टाइप यहाँ पे मेरा कैसा है, आपका डबल है, और ये रिटर्न टाइप मेरा कैसा इंटीजर है. तो इस केस में क्या करेगा, वो आपका एरर देगा कि जो मेथड आपने डिफाइन किया है वो डुप्लीकेट मेथड डिफाइन किया है, तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है. सो आप अगर आप मेथड को कॉल करा रहे डेफिनेटली इट विल गोइंग टू गिव द आउटपुट. ओके, सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड. सो यस, बाय मेथड ओवरलोडिंग यू कैन हैव नंबर ऑफ मेन मेथड्स इन ए क्लास. क्या होता है, मतलब आपको पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा, तो यू कैन हैव दिस. ओके, सो द क्वेश्चन इफ समवन विल आस्क यू कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड, सो यू विल से yes we can do. Basically by method overloading you can have any number of main methods in a class by method overloading, but JVM calls main methods which receive string array as argument.
Okay, let's show the, I will show the show you the example. Okay, um, 1 minute. I'm going to create a new class. I have created suppose A1 class. Okay, in this class I have created one more main method. Okay, and another one I have created a main method, but here just I am using the ARGS. So पैरामीटर डिफरेंट हो गया आपका, तो ये पॉसिबल है मेथड ओवरलोडिंग केस में. ओके, एक और मेथड हमने लिखा है यहाँ पे पब्लिक. सो ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट मेथड मैंने यहाँ पे यूज करे हैं. तो क्वेश्चन क्या है आपका कि कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड, कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड? yes, we can overload by using the different type of parameters or return type. so यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पैरा मेथड मैंने लिखा है ये प्रीडिफाइंड वाला है. आप इसको रन कराते हो देखते हैं आउटपुट क्या आता है मेरा. लेकिन जावा क्या करता है बाय डिफॉल्ट आपके मेन मेथड को ही लोड करता है. किस वाले को? इस वाले को जो आपने यहाँ पे लिखा है. तो ओवरलोडिंग आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आपका जेवीएम कॉल्स मेन मेथड विच रिसीव स्ट्रिंग एरे. सो जेवीएम यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं आपको JVM कॉल मेन मेथड विच रिसीव्स स्ट्रिंग एरे. सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द, पूरा लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट ओनली. सो ये रिमेंबर रहेगा. आप मल्टीपल मेथड्स रख सकते हैं लेकिन JVM आपका मेन मेथड को ही कॉल करते हैं. सो यहाँ पे आपका एक आगे टॉपिक आता है मेथड ओवरलोडिंग इन टाइप प्रमोशन. क्या होता है? वन टाइप इज प्रमोटेड टू अनदर इम्प्लिसिटली इफ नो मैचिंग डेटा टाइप इज फाउंड. सो अभी अगर कोई डेटा टाइप मैच नहीं करता है जैसे बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल. सो अगर आप इंटीजर है आपका कैरेक्टर एरे होता है. सो एज अ डिस्प्ले यू कैन सी, आई विल शो यू वन डायग्राम सो देयर यू कैन चेक. सो बेसिकली दिस इज डेटा टाइप चेनिंग. आप कौन से डेटा टाइप को कौन से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आपका शॉर्ट होता है, शॉर्ट को इंटीजर में, इंटीजर को डबल, लॉन्ग, फ्लोट, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ने वाले हैं. तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट. मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर किए हैं. पहला आपका मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द पैरामीटर. ओनली बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका रिटर्न टाइप प्लस पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो तो पॉसिबल है. दूसरा जावा में मेन मेथड जो होता है आपका उस ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट जेवीएम बाय डिफॉल्ट कॉल करते हैं जिसमें आपका स्ट्रिंग एरे रिसीव होता है उसी को कॉल कराता है. तो यहाँ पे मेरा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. हमने मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया था. अभी हम बात करेंगे सुपर कीवर्ड की. सो सुपर कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली सुपर कीवर्ड आपका जो जो आपका सुपर पैरेंट होता है, मतलब जैसे आपने क्लासेस यूज करी, एक तो इंस्टेंस पैरामीटर होता है, एक सुपर पैरामीटर होता है. तो उसको इमीडिएट पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कराने के लिए यूज होता है सुपर कीवर्ड. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल टेल यू द डेफिनेशन. बेसिकली द सुपर कीवर्ड इन जावा इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. सपोज आपके पास 4-5 क्लासेस है लेकिन आपको सबसे टॉप वाले पेरेंट क्लास को कॉल कराना है, तो इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट की कॉल कराने के लिए आपको सुपर यूज करना पड़ता है. अब ये सुपर आप वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेथड के साथ भी कॉल करा सकते हैं. तो सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल. सेकंड, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड.
थर्ड, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. सो बेसिकली सुपर क्या होता है? सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. Super is a reference variable which is used to refer immediate parent class object, and use of super keyword is, first you can use with a parent class instance variable, you can use immediate parent class method, and super method can be used invoke parent class constructor. So ये आपका super का यूज होता है. तो हम इसके बारे में डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे. ओके, सो सुपर कीवर्ड क्या होता है आपका? बेसिकली सुपर इज अ रेफरेंस वेरिएबल which is used to refer immediate parent class object. First, super can be used to refer immediate parent class instance variable. You can write it down like this. Second होता है आपका super can be used to invoke method parent class method. Also, super method can be used to invoke constructor. ये आपका सुपर का डेफिनेशन है. और हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, हम ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, पहले हम पढ़ते हैं इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में, फिर हम बात करेंगे मेथड के बारे में, फिर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में. तो सुपर इज यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल. अब हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. इक्लिप्स पे जाते हैं, इसी वाले इसमें कर लेते हैं. ठीक है, या फिर आपको नया क्लास बनाना है तो आप नया क्लास भी बना सकते हैं. ठीक है, अभी हम इसमें इसी क्लास के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, तो आपको दूसरे एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप चाहते तो नया क्लास बना सकते हैं. तो ये सारे मेन मेथड को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं. मैंने ये क्लास लिया है, यहाँ पे क्लास का नाम मेरा ए है. एक और मैंने क्लास क्रिएट कर लिया है यहाँ पे. सपोज पुराने वाले एग्जांपल ले लेते हैं. एनिमल नाम का मैंने एक क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे. इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, कुछ भी कर देते, चलो कलर से डिफरेंस हो जाएगा. ये एनिमल नेम ब्लैक ले लेते हैं. यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर डिफाइन किया. इस क्लास के अंदर कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. यहाँ पे मैंने जो मेरा क्लास E1 जो यहाँ पे आप एक क्लास देख रहे हैं, इसके बाद में मैंने एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लिया. उसका नाम मैंने यहाँ पे डॉग रख दिया. और ये क्लास जो मेरा है वो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर लेता है. और इसी क्लास के अंदर मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें मैंने कलर लिखा. यहाँ पे मैंने कलर लिख दिया वाइट. ओके, अभी मैंने जैसे वाइट क्लिक किया तो इसी वाले के अंदर मैंने एक और यूज़ किया मेथड. आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे समझाने के लिए आपको दे रहे हैं. मैंने प्रिंट हम यूज़ कर रहे हैं, और डिस्प्ले कुछ भी आप लिख सकते हो. ये मेरा प्रिंट कलर, मुझे कौन सा कलर प्रिंट करना है उसके लिए है. तो मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में ये सिर्फ सिंपल से यहाँ पे कलर प्रिंट करा दिया, जो कि ये आपका वेरिएबल है वाइट. ओके, और दूसरा मैंने अभी इतना किया. और ये वाली क्लास हमने यहाँ पे यूज़ करी है. इस वाले क्लास के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, इसको आप कमेंट कर दीजिए. यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो मैंने डॉग क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है. obj is equals to new dog, और using this object you are going to call this method print color. Okay, now what will be the output? we'll see. क्या आउटपुट आया आपका वाइट. लेकिन मुझे वाइट नहीं, मुझे ये ब्लैक प्रिंट कराना है इमीडिएट पेरेंट क्लास के लिए. तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं? सो दिस इज द यूज ऑफ सुपर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में जाएंगे, सुपर कीवर्ड यूज़ करेंगे, डॉट
आपका कलर यूज करेंगे। अब जब आप इसको रन कराएंगे तो व्हाइट भी प्रिंट हो गया आपका, लेकिन ब्लैक भी प्रिंट हो गया, बिकॉज आपने यहाँ पे सुपर के थ्रू उसको कॉल कराया। तो सुपर बेसिकली यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ये तो वेरिएबल के बारे में बात हो गई। अभी हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में, सुपर कैन बी यूज टू इनवोक। अभी हम यहाँ पे इस वाले क्लास के अंदर ना एक मेथड डिफाइन कर देते हैं। मैंने वर्ड ईट करके एक मेथड डिफाइन कर दिया, और कलर की जगह हम कुछ डिस्प्ले कर प्रिंट करा देंगे, कलर वाले को हटा देते हैं, या इसमें भी कर सकते थे आप। यहाँ पे मैंने एंटर किया और ये लिख दिया हेलो एनिमल। ये मेरा एनिमल क्लास है, मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन किया। और ये जो सेम मेथड है उठा के सिंपल सा मेथड मैंने इस क्लास के अंदर भी रख दिया है। ओके, लेट इसको भी रहने देते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है, प्रिंट कलर क्लास है। ओके, मैंने ये कर दिया यहाँ पे, और इसमें मैंने इसके जगह हेलो के जगह क्या रखे, डॉग रख दिया। अब जब इसको आप रन कराएंगे तो आपको पता है कि आपको कौन सा कॉल होता है, ये पहले इन्वोक कौन सा होता है ये भी आपको पता है, लेकिन मैंने प्रिंट तो कर, यहाँ पे कॉल भी तो कराना पड़ेगा ना। obj.eat करके मैंने मेथड है यहाँ पे कॉल कराया। आप इसको भी रन करेंगे तो जो डॉग क्लास का मेथड है वो आपको यहाँ पे कॉल होगा, वाइट और हेलो डॉग। वाइट तो कलर है, ये यहाँ पे प्रिंट है इसलिए। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अपना इमीडिएट पेरेंट क्लास का रन कराना है, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, है ना। दोनों मेथड सेम भी रख सकते हैं, आप डिफरेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे सुपर डॉट ईट। अगर आप इस तरीके से लिखने वाले हैं तो आपका आउटपुट ऊपर वाले मेथड पे भेजेगा, डॉग एनिमल। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ सुपर इन केस ऑफ मेथड। अभी हम बात करते हैं सुपर कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है। अगर मैंने कोई क्लास बनाई है, यहाँ पे मेरा एक क्लास है एनिमल, हम इस मेथड को इसी क्लास के अंदर बता रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने यहाँ पे इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो एनिमल कंस्ट्रक्टर। ओके, और अभी ये मेरा दूसरा क्लास है, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं हम, मेथड को, मेथड की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरा डॉग क्लास है ना, इसके अंदर ही मैंने डॉग एक ये बना लिया। यहाँ पे मैंने लिखा डॉग क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, और अभी हम क्या करने वाले हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं, नीचे से भी हटा देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं, बस मैंने क्या किया, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी देखते हैं आउटपुट में क्या आता है आपका, हेलो एनिमल कंस्ट्रक्टर डॉग क्लास कंस्ट्रक्टर। अब इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी ये क्यों आया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ ही बता दूं कि यहाँ पे आपको सुपर यूज करेंगे तो आपका ये आउटपुट आएगा। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि तो ऑलरेडी आउटपुट आ गया, उसका रीजन मैं बताऊंगी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टर में सुपर इनबिल्ट होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट सुपर इनबिल्ट होता है। तो जैसे ही वो अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस क्लास में जाएगा, जिस क्लास में आपको एक्सटेंड कर रखा है एनिमल क्लास को, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंटरनली सुपर रहता है। वो सुपर क्या करता है, आपके इमीडिएट पेरेंट क्लास में जाता है, उसके कंस्ट्रक्टर को पहले प्रिंट करता है, फिर अपने आप को प्रिंट करता है। लेकिन अगर आप सुपर लगा दें तो भी यही होता है। तो बेसिकली कहता है सुपर मेथड इज एडेड इन ईच क्लास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर इफ देयर इज नो सुपर और दिस। अगर दिस भी नहीं है आपका और सुपर भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता है ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर मेथड और दिस मेथड को। सो बेसिकली as we know well that default constructor is provided by the compiler automatically if there is no constructor, okay, also but if also added super as first statement, पहले स्टेटमेंट पे ही ऐड कर देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बाय डिफॉल्ट भी ऐड कर देता है यहाँ पे, अगर आपने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे हम नोट बना के ये लिख देते हैं। यहाँ पे आप नोट में डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे सुपर, बट ये कंसिडर के केस में ही होता है, ये मेथड के केस में नहीं होता, ये सिर्फ कंसिडर के केस में होता है। ओके, यहाँ पे मैंने कंसिडर दे दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर कीवर्ड
इसमें 3 तरह से यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनिशियलाइजर ब्लॉक। बेसिकली ये स्टैटिक या फाइनल जो भी आप लिखते हो उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर को। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम इस क्लास नया नया क्लास लेने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे इनिशियलाइजर ब्लॉक। बेसिकली इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है? इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस डेटा मेंबर. It run each time when object of the class is created. Okay. अभी आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, उसको इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन प्रोग्राम में कहीं आपको याद आया कि यू हैव यूज्ड वन वेरिएबल बट आपको वो इनिशियलाइज करना है, तो कहीं पे भी आप एक सिंपल ब्लॉक बनाएंगे, उसमें उसको इनिशियलाइज कर देंगे, बाय डिफॉल्ट वो आपका इनिशियलाइज हो जाता है। देखो कैसे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनिशियलाइजर ब्लॉक की, ये एक मेरा ब्लॉक है, कहीं पे आपने एक वेरिएबल यूज किया इंटीजर ए और इसको इनिशियलाइज नहीं किया, प्रोग्राम में आपने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा, आपको याद है कि मुझे इस वेरिएबल का यूज करना है, तो आप जाके इस वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर क्या कर दीजिए, असाइन कर दीजिए वैल्यू, तो वो आपके इनिशियलाइजर ब्लॉक कहलाता है। तो बेसिकली इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक is used to initialize the instance data member and it run each time when object of the class is created. Okay, now the question can be what is the use of instance initializer block? मैंने आपको बता दिया आपको क्या करता है ये। We can directly assign a value in instance data member, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। Why use instance initializer block? Because I have to perform some action that variable you have already declared, but you have to initialize that variable value. So in that case also you can use, और loop to fill a complex array और error handling के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताने वाले हैं, इसका एग्जांपल इंस्टेंस इनिशियलाइजर का, यहीं पे इसी वाले क्लास पैकेज में बताते हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यू क्लास लिया और क्लास में मैंने यहाँ पे A2 नाम क्लास का रख दिया, मेन मेथड ले लिया। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, मेरा जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल रखा है इंटीजर डमी, ये मेरा वेरिएबल का नेम है, और मैंने ये सपोज इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया क्लास का। ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, और यहाँ पे ये जो वेरिएबल मैंने लिखा है, इस वेरिएबल को इसके अंदर पास करा दिया, मुझे ये वेरिएबल प्रिंट कराना है। और अभी मैंने क्या किया, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आपने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और कंस्ट्रक्टर में डमी है, लेकिन आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, तो इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू डेटा टाइप पे बड़ी इनिशियलाइज करता है, तो अभी आपको इसका आउटपुट जो मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है। लेकिन मुझे याद आया कि सपोज 1000 लाइन ऑफ कोड है, यहाँ तक वो थोड़ा सा दिखेगा कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू इसके बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मेरा ये डमी वेरिएबल है, सो मैंने इसका वैल्यू रख दिया डेटा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। अभी के लिए मतलब एक मैसेज दिख देते हैं, वैल्यू असाइन, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसके लिए रख दी यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू है। तो अभी आपने क्या करा, मैंने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, नहीं सॉरी ये इंटीजर नहीं स्ट्रिंग लेते हैं भाई, क्योंकि मैंने वैल्यू इंस्टेंस लिया, चलो अभी इंटीजर लिया है तो इंटीजर कर देते हैं, इसकी वैल्यू मैंने 100 कर दिया, डमी वैल्यू 100, इंटीजर सोचा था अभी। अब रन कराएंगे तो ये आपका 100 प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए आपका इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ होता है इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू को। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप इसको भी कंस्ट्रक्टर के साथ, मेथड के साथ और ब्लॉक के साथ यूज़ कर सकते हो। तो जो अभी व्हाट इज इन्वोक फर्स्ट, अगर आप ये बोल सकते हो मुझसे कि अगर आप इसको इसी तरह यूज़ करते हैं तो मेरे पास ये भी है, यहाँ पे आपने डिफाइन किया है कंस्ट्रक्टर, अगर मेरे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर भी है और इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक भी है, तो पहले आपका क्या एक्सेस होगा। ओके, सो पहले आपका क्या एक्सेस होता है वो हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने क्या करा, अभी इसको हटा देते हैं, हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करते हैं, हेलो, इसका मैंने नेम दिया है कंस्ट्रक्टर, और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इस ब्लॉक के अंदर में एक मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ इनिशियलाइजर ब्लॉक, स्पेलिंग ध्यान दे सकते हैं आप, इनिशियलाइजर ब्लॉक। ओके, अभी हमको क्या करना है, मुझे ना ये रन कराना है। देखो दोनों के आप लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने और कुछ जरूरत नहीं है, मैंने इसको रन कराया। जैसे आपने इसको रन कराया तो पहले आपको क्या खोलो, इनिशियलाइजर ब्लॉक। तो अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी यूज करते हो और इनिशियलाइजर ब्लॉक भी यूज करते हो, तो पहले आपका इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होता है बेसिकली।
So in that case it seems that initializer block is first invoked. यहाँ पे आपके आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है कि पहले आपका इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल हुआ है, बट रियल में ऐसा नहीं है, इंटरनली ऐसा नहीं होता है। ये आउटपुट में आपका इनिशियलाइजर ब्लॉक का आउटपुट आया है। ओके, INTIALIZER, सॉरी। सो अगर आप इसको रन करा रहे हैं तो आपका इनिशियलाइजर ब्लॉक आ रहा है, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं होता है। बेसिकली इनिशियलाइजर ब्लॉक इज इन्वोक एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आपका इनिशियलाइजर ब्लॉक इन्वोक होता है। द जावा कंपाइलर कॉपीज दैट इनिशियलाइजर ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्टर आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सुपर। अभी सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो सबसे पहले आपका क्या कॉल हो जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल इन्वोक होता है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, लेकिन उसमें कैसे रहता है, आपका सुपर रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, इन केस ऑफ दैट जावा कंपाइलर कॉपीज द इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्टर आफ्टर दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सुपर। दिस इज द रीजन कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट व्हाट इट विल इन्वोक, इनिशियलाइजर ब्लॉक। सो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है, फिर बाद में होता है। तो इन जावा कंपाइलर कॉपी द कोड ऑफ इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इन एवरी कंस्ट्रक्टर। सो ये आपको ध्यान में रखना, जैसे कंपाइल होगा, जैसे कंपाइल होगा कोड इंटरनली यहाँ पे आपका सुपर आ जाएगा। ओके, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, पहला स्टेप आपका कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर के बाद ही कुछ चीजें डिफाइन होती है जो भी आपके लिख होते हैं। सो बेसिकली रूल ये कहता है कि द इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। Instance initializer block is invoked after the parent class constructor is invoked, that is after super or constructor call. The instance initializer block comes in the order in which they appear, जैसे भी आपने रखा है उसी ऑर्डर में ये डिस्प्ले होता है। ओके, सो ये आपका रीजन है। यहाँ पे इसको यूज करने के लिए ज्यादातर यूज नहीं होता है, लेकिन वैल्यू को असाइन करने के लिए समटाइम्स आप यूज कर लेते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, then we will moving in the next topic. If you are having any doubt you can ask. If you are new please subscribe my channel. Thank you so much for watching.